another thing that matters is that exam day पे perform करने के लिए we need practice. And these questions जो आप अभी देखेंगे आज की क्लास में या फिर in general हमारी सारी presentations के अंदर, these questions are generally inspired from the questions that have come in the past exams. They have come in the past NPTQs or in other placement exams. And that is why majority of them are testing one or two concepts आपके, and they're checking whether आपको एक particular topic आता है या नहीं आता. अगर आपको topic आता है, that's good. अगर नहीं आता, listen to the explanation, listen to why the particular thing is coming on, and again clear your doubts. And doubt clearing अभी के time में it's very important, because अगर अभी नहीं किया, there's a very good chance that under pressure हम गलती करें, and that should not happen, right? So I believe हमने last class में we did up till this question where we were talking about class members, and हमने बोला था कि यहाँ पे जो x है एक class member बनेगा and इस class member की value होगी 2 if I remember correctly, and हमारा output आएगा 2,2 because जो class member है it is accessible through the through A and through the class. Let's start off this particular class. हमारी अपनी class को let's start off with a question, and let's see whether you know how to answer this one. Student, please write your answer on chat box. We encourage you, as much you participate, you will get the knowledge. So please dry run it and give your answer on chat box. Good, Harshit, Kalyani, Ayushman, good. So what's the answer we're getting? We are getting 3 responses, and all of them are having opinion that the option A is the correct one. Okay. Again, we have a batch of like what 60, 65 right now, maybe 70. So again, answer as quickly as possible, but with careful understanding कि किस तरीके से काम कर रहा है. I'll give another 5-7 seconds to answer, and then we'll go on to the explanation कि ये किस तरीके से, how is it functioning. अच्छा, एक question आता है यहाँ पे, like another thing that this particular question is testing you on is whether this particular syntax, क्या ये syntax सही है या गलत है, and इस syntax का मतलब क्या है. There's a very good chance कि maybe ना पता हो, and that is why you're hesitant to answer. So let's see. Okay. So हमारा response क्या आया है? A or any other responses? So they give answer A. We are getting 4 responses, and all of having same opinion that the option number A is answer. Okay, like, but why only 4 responses? Come on, guys, like it's what 10:30, quarter to 11. Matlab, it's still the morning. You can answer. You can think about how is this particular question working. And anyways, let's get into एक मिनट मैं इनसे बात करना चाहता हूँ सर. एक मिनट. देखो, जो भी स्टडी मटेरियल हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं इस टाइम आपको पढ़ाया जा रहा है, दैट इज टोटली फोकस ओवर योर इनकमिंग एग्जामिनेशन, दैट इज NPTQ. और जो भी टॉपिक या सब टॉपिक्स उसके अंदर कवर किया, चाहे वो ऊप्स हो, चाहे वो डेटा स्ट्रक्चर्स हो, चाहे वो कोई भी टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है, वहां पे जो मेन फोकस एरिया है वो है NPTQ, रिलेटेड कॉन्सेप्ट. अगर 4 बच्चे ही रिस्पॉन्स करेंगे तो आप ये सोचिए आपके इंटरव्यू का प्रिपरेशन कहाँ जा रहा है ना. सो प्लीज मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपको आता है नहीं आता ये सेकेंडरी चीज है, आपको रिस्पॉन्सिव मोड में तो आना ही पड़ेगा ना. आप इंटरव्यू के सामने अपने आप को हाइड नहीं कर सकते, आप चुप नहीं रह सकते, आपको जवाब देना है ना. तो बेटर है कि आप आंसर देना स्टार्ट करें. ठीक है, मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट टाइम सारे बच्चे प्लीज आंसर दीजिएगा.
so that it will motivate us. It create a positive vibe for you, for us also. Okay. Sir, please, you may continue. Right. So let's see ये execution हो कैसे रहा है. What we are getting asked is कि आप एक object बनाए class fruits का, fruits class के object को एक price, एक instance member बनाए, and price को आप value दे दें what 50. Then अगली लाइन में क्या बोला जा रहा है, object के अंदर आप दो नई values डालें, two new instance values डालें, एक quantity and एक bags, and इन दो values को कोई न्यूमेरिक वैल्यूज हमने असाइन कर दिया, से 14 and 2. नाउ हमसे पूछा क्या जा रहा है, आउटपुट क्या आएगा. आउटपुट के अंदर देयर इज एन एडिशन, एक एडिशन ऑपरेटर लगा हुआ है. दैट मींस हमें कुछ ऐड करना होगा. अच्छा, दूसरा पार्ट क्या है, हमें बोला जा रहा है कि ऑब्जेक्ट के अंदर एक बिल्ट इन टाइप है डिक्शनरी, बिल्ट इन ऑब्जेक्ट है डिक्शनरी ओबीजे के अंदर, उसकी लेंथ बताओ एंड उसकी लेंथ को ऐड कर दो क्वांटिटी के अंदर. ओके, सो जो हमारा डिक्शनरी है, दिस इज अनदर बिल्ट इन टाइप. ऐसे काफी सारे टाइप्स अवेलेबल हैं. इफ यू लुक एट द डॉक्यूमेंटेशन यू विल फाइंड मेनी मोर. डिक्शनरी पर्टिकुलरली मुझे बताता है कि करंट स्कोप के अंदर कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, कौन कौन से नाम है, एंड उन नाम का जो एड्रेस लिंक्ड है वो कहां पर है. सो अगर नेम ऑब्जेक्ट बाइंडिंग याद होगा तो हमारे पास एक तरफ नाम होता है, दूसरी तरफ हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है. नाम किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से लिंक होगा. सो व्हाट वी आर गेटिंग आस्क्ड इज व्हेन दिस पर्टिकुलर लिंक हैपेंस, काउंट कितने लिंक्स चाहिए एंड ऐड दैट टू द क्वांटिटी. ओके, अब मेरे ऑब्जेक्ट स्कोप की बात करेंगे अगर, विच इज दिस. इस ऑब्जेक्ट स्कोप के अंदर वी हैव 3 values, price, quantity and bags. So simply करना क्या था, हमें करना था 14 plus 3 and the answer is 17. That is A. So the majority जिन्होंने रिप्लाई किया था they are correct. The answer would be A. तो जो हमने भी ये काम किया, what is this called? We are calling these as instance members. ये एक particular instance को belong करते हैं. Again, I'll do a quick revision of the last class. हमने देखा था कि हमारे पास 3 तरीके के ऑब्जेक्ट्स बनते हैं. हमारे पास बनेगा इंस्टेंस ऑब्जेक्ट, हमारे पास बनेगा क्लास ऑब्जेक्ट, हमारे पास बनेगा मेथड ऑब्जेक्ट. सो यहाँ पे हम बात करें, जब हमने एक इंस्टेंस बनाया थ्रू सम फंक्शन लाइक दिस, तो इस इंस्टेंस के अंदर जो वैल्यूज हैं वो किस तरीके से डल रही हैं एंड क्या वो वैल्यूज रन टाइम पे डल सकते हैं. ये जो वैल्यूज हैं ये तब तक मेमोरी में रहेंगी जब तक ये पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑब्जेक्ट मेमोरी में रहता है. अगर मैं इसको डी रेफरेंस कर देता हूं, से आई डू डेल ओबीजे एंड आफ्टर सम टाइम गार्बेज कलेक्शन रन करता है एंड ये मेमोरी से हटा देता है, होगा क्या, जो ये मेरी वैल्यूज थी क्वांटिटी, बैग्स एंड प्राइस, ये तीनों वैल्यूज मेमोरी से हट जाएंगी बिकॉज दे वर पार्ट ऑफ ओबीजे, they were part of this particular structure OBJ. अच्छा, इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है हमारे पास. क्वेश्चन इज आस्किंग यू कि एक सिंपल सा कोड गिवन है, लुक एट दिस कोड एंड टेल अस कि आउटपुट क्या है. Again, I want the maximum response and the code, the segment is very easy. Considering you guys are from the CSIT background, आपने Python या any language is probably your bread and butter, and you should understand कि किस तरीके से काम कर रहा है, what is the background, and when someone asks you, you know कि background में चल क्या रहा है. Otherwise, you won't be hired as a Python expert or a developer in the particular language. So, what would be the answer? क्या print 0 होगा, क्या कोई error आएगा, 20 आएगा, या none of these? If you think answer is none of these, please बताओ कि आपको क्या लगता है आंसर क्या आना चाहिए. What's the response so far?
Students are replying A. Only one response, that is C, and rest are A. Seriously? Okay. Guys, question को थोड़ा ध्यान से पढ़ो, because the answer here is error. You'll get an error. Okay. Error क्यों आएगा? I'll give you another 10 seconds, and उसके बाद you have the option to open your mic and explain to the entire batch की error आएगा तो क्यों आएगा. अगर you aren't able to explain, I'll explain कि क्यों आ रहा है. Okay. So anyhow, हमारे पास यहाँ पे एक डेटा क्लास ऑब्जेक्ट बना. उस डेटा क्लास ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ कुछ वैल्यूज हैं. बेसिकली हमारे पास एक इनट फंक्शन है. देन हमारे पास एक कैल्सी नाम से क्लास बनी जिसके अंदर दो फंक्शंस हैं, ऐड एंड मल्टीप्लाई. I'll write multi here. अब हमसे बोला जा रहा है कि आप डेटा D1 कॉल करो, D2 कॉल करो, लाइक D1 एंड D2 बनाओ डेटा के, एंड इन D1 D2 को यूज करके कैल्सी डॉट ऐड करो. राइट. जब हमने D1 D2 बनाया, लेट्स जस्ट मेक द ऑब्जेक्ट्स. D1 बनाया एंड D2 बनाया. व्हाट्स हैपनिंग इज हम डेटा के अंदर एक कांस्टेंट वैल्यू बना रहे हैं व्हिच इज कॉमन टू ऑल द ऑब्जेक्ट्स, एंड इस कांस्टेंट वैल्यू को हम वैल्यू दे रहे हैं 20. देन हम D1 के अंदर एंड D2 के अंदर डेटा बना रहे हैं, एंड डेटा हैज वैल्यू 0 इन बोथ केसेस. ये जो है हमारे दीज टू, ये हमारे इंस्टेंस ऑब्जेक्ट्स हैं, ये हमारा क्लास ऑब्जेक्ट है, एंड ये भी हमारा क्लास ऑब्जेक्ट है. नाउ अब मुझसे पूछा जा रहा है कि प्रिंट करो कैल्सी डॉट ऐड. राइट. ऐड फंक्शन के पैरामीटर्स देखते हैं एक बार. ऐड फंक्शन के अंदर 3 पैरामीटर्स हैं, सेल्फ, ए, बी. जब मैंने कॉल किया कैल्सी डॉट ऐड कॉल किया तो हुआ क्या? आई सेंट 2 पैरामीटर्स D1 D2, बट कैल्सी पास नहीं हुआ. बाय डिफॉल्ट जब हम एक फंक्शन को कॉल करते हैं तो होता क्या है, हमारा करंट पर्टिकुलर इंस्टेंस पास होता है. जब हम एक फंक्शन को एक इंस्टेंस ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करते हैं, बट यहां पे हम इंस्टेंस के थ्रू कॉल नहीं कर रहे, हम क्लास के थ्रू कॉल कर रहे हैं, एंड बाय डिफॉल्ट क्लास के थ्रू कॉल करने पे क्लास पास नहीं होता. सो हमारा एरर जनरेट होगा, एंड वो एरर कुछ इस तरीके से होगा, वो आपसे बोलेगा कि आपने 2 पैरामीटर्स दिए एंड द फंक्शन वाज एक्सपेक्टिंग 3 पैरामीटर्स. सो अब मुझे इसको फिक्स करना है. राइट. यहां तक क्लियर है? Is it clear till now? Yes or no? Please write in the chat. मृदुल रिप्लाई एक बार फिर एक्सप्लेन कर दीजिए सर. Okay, I'll do that. So let's see. हमने कहा हमारे को D1 and D2 बनाना है. D1 and D2 are instances, right? D1 and D2 are instance objects जिसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर्ड है. In this case 0. Like there's a name data has a value 0. अब मैं जब कॉल करने की कोशिश करता हूं, अगर मैंने सपोज यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लाइन लिखी होती से कैल्सी फंक्शन, एंड मैंने कोई एक ए नाम से इंस्टेंस बनाया होता, एंड आई हैड रिटन ए डॉट ऐड. मैं ए डॉट ऐड कॉल करने की कोशिश कर रहा हूं विद द वैल्यूज D1 एंड D2. ये एक वैलिड स्टेटमेंट होता. ये वैलिड स्टेटमेंट क्यों होता? बिकॉज मैं इंस्टेंस के थ्रू कॉल करने की कोशिश कर रहा हूं. आई एम नॉट ट्राइंग टू कॉल थ्रू क्लास.
बाय डिफॉल्ट पाइथन लैंग्वेज के अंदर जो बिहेवियर है वो इस तरीके से है कि जो मेरा क्लास है वो अपने आप को पास नहीं करेगा एज अ पैरामीटर, बट मेरा जो इंस्टेंस है, इंस्टेंस ऑब्जेक्ट है, वो अपने आप को पास करेगा एज अ पैरामीटर। सो हुआ क्या, मैंने बोला कैल्सी डॉट ऐड करो एंड पैरामीटर्स पास करो। कैल्सी डॉट ऐड किया, मैंने पास कितने पैरामीटर्स करे, 2, D1 D2। एक्सपेक्टेड कितने पैरामीटर्स थे, 3, सेल्फ A and B। We were expecting 3 parameters, one being the instance जिसने कॉल किया है and A and B, but वो मिला नहीं मुझे खाली 2 पैरामीटर्स मिले, D1 D2 और A and B, बट सेल्फ नहीं मिला। और इन दिस केस सेल्फ मिला, A मिला, B नहीं मिला, वन ऑफ द पैरामीटर्स नहीं मिला। सो एरर जनरेट होगा कि आपने एनएफ पैरामीटर्स नहीं दिए। अब इसको मुझे ठीक करना है, राइट? आई कांट हैव एरर्स लाइक दिस। अगर मेरे को कैलकुलेटर बनाना है, मैं चाहूंगा कि जो डेटा है वो डायरेक्टली काम करे या क्लास के थ्रू काम करे, इफ नॉट डायरेक्टली। सो आई हैव द ऑप्शन ऑफ क्लास मेथड्स। मैं एक पर्टिकुलर डेकोरेटर यूज कर सकता हूँ, यू विल सी दिस इन पाइथन अ फ्यू टाइम्स। मैं डेकोरेटर यूज कर सकता हूँ, लाइक क्लास मेथड, एंड ये डेकोरेटर मेरे इंटरप्रेटर को बता रहा है कि जो फंक्शन है, सेल्फ हो गया या मल्टीप्लाई हो गया, ये जो फंक्शंस हैं, ये फंक्शंस क्लास को बिलोंग करते हैं, इंस्टेंस को बिलोंग नहीं करते। सो जो मेरा पहला पैरामीटर होगा वो क्लास होगा, एंड इनको मैं क्लास के थ्रू कॉल कर सकता हूं, बट इंस्टेंस के थ्रू कॉल नहीं कर सकता, राइट? सो आई एम क्रिएटिंग क्लास मेथड्स। अब जनरली व्हाट द कन्वेंशन सेज, आप यहां पे सेल्फ की जगह, बिकॉज यू आर राइटिंग अ क्लास मेथड, यू राइट CLS, and it again makes your code much more visible and easy to understand कि आप करना क्या चाह रहे हैं। But again, the CLS, the self is optional, मतलब the name is mandatory, but what the name is completely dependent on you। आप क्या नाम रखना चाहते हैं अपने particular instance के लिए, ठीक है? So this is class methods। क्या class methods में कोई doubt है? Because there's a question on this जो अगली स्लाइड में आने वाला है। Student, any doubts so far? अच्छा, एक Just doubt one आया, sir, okay, and yeah. We receive one doubt, sir. D1 and D2 may be same object or not? okay, क्या D1 and D2 सेम ऑब्जेक्ट होंगे? Absolutely not। D1 and D2 are instances। D1 is a separate memory allocation, D2 is a separate memory allocation। ये हमने लास्ट क्लास में बात की थी। ये जो मेमोरी एलोकेशन है ये बिल्कुल अलग अलग है, मेरी RAM में अलग अलग जगह पे बिलोंग करेंगे। इनके अंदर जो ये वैल्यू है, जो नाम है डेटा, राइट, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग जगह लिखा जाएगा, ये अलग जगह लिखा जाएगा। तो जो डेटा रेफरेंस है दैट इज समवेयर एल्स, D1 जो रेफरेंस है दैट इज समवेयर एल्स। ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है यहाँ पे, जो हमने ये लिखा था डेटा डॉट कॉन्स्टेंट, राइट, दिस लाइन। अ क्वेश्चन राइट काम कि हमने डेटा डॉट कॉन्स्टेंट लिखा था, ये किस तरीके से काम करता है? जब हमने क्लास को इनिशियलाइज किया, व्हाट वी हैव आल्सो डन इज, हमने डेटा ऑब्जेक्ट के अंदर, जो डेटा क्लास ऑब्जेक्ट है, उस डेटा क्लास ऑब्जेक्ट के अंदर एक नया वैल्यू इंक्लूड कर दिया 20 कांस्टेंट नाम से, एंड उसको असाइन कर दिया वैल्यू 20। सो अगर मैं यहाँ पे सपोज लिखता D1 डॉट कॉन्स्टेंट एंड D2 डॉट कॉन्स्टेंट, ये सेम रेफर कर रहे होते हैं। बट अगर सपोज मैं D1 डॉट डेटा को चेंज कर देता हूं 20 से, D2 डॉट डेटा के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा,
बिकॉज ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है. आई होप डाउट क्लियर हो गया होगा. Okay. Deepak said yes, sir. Okay. Sir, doubt is So clear. class methods के against कोई doubt? Okay, but ये question class methods का नहीं था. This question was basic execution. So is there any question around class methods? I don't think so. Okay. So answer this question then. हमने same रखा है. We are creating d1.data, d2.data. So we are creating d1. We are creating changing the value of d1. We are creating d2 and हम कुछ operations कर रहे हैं उसके ऊपर. What would be the answer in this case? क्या फिर से error आएगा? क्या 400 आएगा? क्या 20 आएगा? What would be the answer? So what are the responses? Students are replying B. The answer is 400. Yeah, we received 4 responses, Which is the and correct answer. all are say B, Bombay. So what's the class strength right now? 116. And we're getting 4 responses from them. Now 2 more responses are added. 6. With the value being. Okay. Let's flip the script a bit. Again, आप CSIT के हैं, you probably know all of this. I understand, and maybe you don't want to participate in the class, which is absolutely a valid choice. नहीं करना, that's absolutely fine. But make sure अगर आप respond नहीं कर रहे, आप question solve कर रहे हैं, because that's what matters. So answer the next question, and then we'll move on to probably the pillars of OOPS and classes. OOPS कैसे काम करता है? Python के अंदर. Good responses. We received good responses from the students, and all of them having a common option, that is A. They think that the right answer is A. Okay, which is the right option? Right option किस तरीके से है? जब मैं static method की बात करूंगा यहाँ पे, what I'm saying is static method neither needs मेरा instance object, ना कि मेरे को class की जरूरत है. It can't directly be called. So जो मैं यहाँ पे binding कर रहा हूँ, जो मैं यहाँ पे object को class के part बना रहा हूँ, it is just एक तरीके से show करने के लिए. The method is pretty much independent from the class, and it does not require any direct call. Like मेरे को method का वो instance pass करने की जरूरत नहीं है.
यहाँ पे आप नोटिस करोगे ना मैंने सेल्फ पास किया है ना मैंने यहाँ पे क्लास पास किया, मैंने खाली एक पर्टिकुलर जिस क्लास का फंक्शन है, जिस क्लास में फंक्शन बिलोंग करता है, मैंने बोला उस क्लास को एक्सेस करके उस फंक्शन को एक्सेस कर लो, एंड दैट्स इट। अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, राइट? अगेन CSIT है, इट्स अंडरस्टैंडेबल दैट इतने सिंपल क्वेश्चंस बहुत आराम से होंगे। सो the next question probably deals with छोटा सा part of inheritance, and the question is something like this: I have a parent and a child, and आपसे पूछा जा रहा है कि आउटपुट क्या आएगा इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर। So what's the answer? We are getting responses, and So they कितने all, in this question we received yes almost sir 10 to 12 responses till now, and they all are having same option. option A for apple. A, and that's the correct answer। कैसे काम करा? हमने जो यहाँ पे मेथड बनाया था, दिस इज अ स्टैटिक मेथड, राइट? जो शो है स्टैटिक मेथड है, इट इज नॉट टेकिंग एनी पैरामीटर्स एंड इट इज जस्ट प्रिंटिंग आउट द वैल्यू। इसके अलावा जब हमने यहाँ पे लिखा, हमने एक चाइल्ड बनाया विच इज पेरेंट का मेंबर, हमने इस चाइल्ड को रन किया, चाइल्ड के अंदर हमने कहा कि शो रन करो। शो क्या कह रहा है? सेल्फ डॉट वार एंड सेल्फ डॉट नम को प्रिंट कराना है, एंड वो प्रिंट हो रहा है विच इज 100, एंड हमारे पास 200 जो ऊपर से वैल्यू आई नाम की, एंड वार की वैल्यू, दिस इज 100 एंड दिस इज 200। देन जब हमने बोला कि पेरेंट डॉट शो कॉल करना है, पेरेंट डॉट शो कॉल करते समय ये वाला पर्टिकुलर सेगमेंट रन होगा, एंड इस सेगमेंट के अंदर वैल्यू आई 4 एंड 5। सो द आंसर, लेकर मैं एक आउटपुट स्क्रीन बनाता हूँ यहाँ पे, तो द आंसर इज 100, 200, 4, 5, which is A. So at this point we'll be jumping on to the next topic. So let's take a 2-minute break, and उतनी देर में आप अपना रोल नंबर लिखें, and let's take the attendance right now, right? And I'll switch the presentation in the meanwhile. Student, kindly write your attendance on a chat box. We need your roll numbers. Till now, if you have any doubt in any topic, please mention on a chat box also, or you can WhatsApp us. You came to our cabin also at second floor. Another thing, as you're writing your roll numbers, I have created like a very small poll, like the last time, and like if once we're done, I'd like some feedback on how you feel about the questions we're discussing in the class. Are they too difficult? Are they too easy? Are they not interesting enough? So,
If you could please submit on this particular poll some feedback on how you feel about the questions in the class. So we'll circle back to the poll and let's continue to the next topic. So is the attendance part done? Yes, attendance part is done. You may proceed the topic. Okay. So the next thing we'll be talking about is OOPS, and in OOPS we are talking about the principles. So principles में exactly है क्या क्या चीज़? We have abstraction, we have encapsulation, we have inheritance, and we have polymorphism. ये चार चीजें are generally called the pillars of OOPS. अब हम इन pillars की बात करते समय what we're going to talk about first is abstraction. There's a very simple question where we are discussing we are creating three instance values, and we're asking you whether what would be the output exactly. And the question is something like this. You'll have a minute again, it's the standard format. Tell me whether there would be an error, and if there is an error, where would be the error? If I remember correctly, हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था लास्ट क्लास के अंदर किस तरीके से अंडरस्कोर्स काम करते हैं in the language. If you remember that, you'll probably be able to answer this question very quickly. So what's the response? We get one response, that is C. Rest of the students are replying B. One is saying the answer is C. Everyone else is saying the answer is B. Who's the one who's saying the answer is C? Now there are two students who are saying the answer C. One is Manish, other is Kalyani. Third one is Anmol now. Okay. Anmol Naresh. Nice, because those three are correct. The answer in fact is C. अब C क्यों है? That's the question, right? We believe that underscore makes the object private. और वो private है तो किस तरीके से है? Right? That's the question. अब अगर हम बात करेंगे show function की, show function हमारा class का part है, right? Show is part of the parent class, and because it is part of the parent class, it has access to the members जो एक instance के अंदर belong कर रहे हैं. अच्छा, but अगर मैं direct access की बात कर रहा हूँ या मैं direct modification की बात कर रहा हूँ, क्या direct modification possible हो पाएगा? क्या direct access possible हो पाएगा? Question वहां पे आता है. जब हम नाम 3 की बात कर रहे हैं, जब हम कह रहे हैं कि नाम 3 है, तो नाम 3 तो डायरेक्टली एक्सेसिबल है. नाम 3 इज अ पब्लिक वैल्यू, राइट? नाम 2 जो है, जहां पे आप लोगों ने गलती करी, नाम 2 क्या कह रहा है? नाम 2 कह रहा है कि ये प्राइवेट है, लाइक इट इज प्राइवेट बट नॉट स्ट्रांगली प्राइवेट.
मेरी वैल्यू इज वेरी मच सिमिलर टू जो सी प्लस प्लस का कंसेप्ट था या जावा का कंसेप्ट था, प्रोटेक्टेड वाला। अगर मैं कोई वैल्यू इनहेरिट करने की बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट इनहेरिटेंस, वहां पे देयर वुड बी एन इश्यू। वहां पे num2 का वैल्यू अवेलेबल नहीं होगा, बट अदरवाइज num2 इज अवेलेबल डायरेक्टली एक्सेस करने के लिए। सो यस, शुरू वाला 3 इज गोना बी 100, 50 एंड 25, बट जब हम अगली बात करेंगे, अगले वाले में बात करेंगे, तो विल हैव 25 बिकॉज num3 इज एक्सेसिबल, 50 because num2 is accessible, but num, this value will not be accessible because ये एक strongly private value है, इसको access करना would not be possible। अब Python language के अंदर by default, like अगर हमने C++ की बात करी या Java की बात करी, वहां पे by default everything is private। Python के अंदर it's completely flipped। Python के अंदर जो हमारी values हैं, जो हमारे ऑब्जेक्ट्स बन रहे हैं, वो बाय डिफॉल्ट हमेशा पब्लिकली एक्सेसिबल हैं। हमें उनको रोकना पड़ता है एक्सेस करने से। एक्सेस विल हैव टू ब्लॉक। अब वो ब्लॉकिंग किस तरीके से पॉसिबल है? थ्रू दीज वैल्यूज, थ्रू अंडरस्कोर्स। ओके, तो अगर हम एब्स्ट्रैक्शन की बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन है क्या? एब्स्ट्रैक्शन इज द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग डिटेल्स, इट्स हाइडिंग मेंबर्स, हाइडिंग इंस्टेंस मेंबर्स, हाइडिंग क्लास मेंबर्स, किसी तरीके से वैल्यूज को छुपाना, जिससे कि जब मैं डायरेक्ट मैनिपुलेशन की बात करूं या डायरेक्ट एक्सेस की बात करूं, दैट डायरेक्ट एक्सेस डज नॉट हैपन, द वैल्यूज आर हिडन। अब पाइथन में क्या 3 तरीके हैं? वी हैव पब्लिक मॉडिफायर्स। अगर हम कोई भी वैल्यू नहीं यूज करते, कोई अंडरस्कोर यूज नहीं करते, वी आर डायरेक्टली सेइंग just print the value, that is public। if we are saying that एक single underscore लगाया जाए, तो that is protected और private। अगर double underscore लगाया जाए, then it is strongly private and हम directly access नहीं कर पाएंगे। so those are the 3 concepts कि access modifiers किस तरीके से डील कर रहे हैं एक particular member object के लिए, right? यहां तक कोई डाउट? Students, do you have any doubts so far? If it is clear, then kindly mention clear. Harsh reply clear. Khushi reply clear. Anmol reply clear. Good. Akshay Tyagi reply clear. Many students are replying clear. The concept is clear to them. The concept is clear. Perfect. So can you answer me this question? This came in the last year's InfyDQ. Answer me this. You're given 4 statements. Tell me which of these are true. If you feel like आपका answer represented नहीं है in ABCD के अंदर, write your answer in the chat box. What do you feel? क्या आंसर only 2 होगा कि हम खाली प्राइवेट की बात कर रहे हैं, और is it like all 4? So what's the response? We are getting 70% response on option A and 30% response on option D. Okay. I can see आप इस डिसीजन पे कैसे आए। Let's see exactly statements क्या कह रही हैं पहले। Public attributes can be only accessed inside the class. This is a completely absurd statement, right? Public attributes हमने just बात किया should be accessible throughout. अगर हम एक particular attribute को, member को double underscore से precede करा रहे हैं, तो वो प्राइवेट होगा। yes, we just saw this. जो प्राइवेट एट्रीब्यूट्स हैं उनको क्लास के बाहर लाने के लिए we can use getter methods. I don't see a problem in this. क्या मेथड्स को हम प्राइवेट बना सकते हैं? Probably नहीं।
That's not possible. So answer would be C and D. Oh, sorry, option 2 and 3, which is A यहाँ पे. अच्छा, हमने एक ये बेसिक देखा. Since again अब CSIT के हैं, आपको probably the standard terms, encapsulation क्या होता है, polymorphism क्या होता है, inheritance क्या होता है, इनकी basic definitions पहले पढ़ रखी होंगी 5th semester में और 4th semester में. So answer me this. एक छोटा सा कोड गिवन है जहां पे हमने 2 क्लासेस बनाई हैं. एंड यूर आस्क्ड कि कौन कौन से कूप के प्रिंसिपल्स यहाँ पे लग रहे हैं. So what are the responses? Students are replying option number B. Everyone. Yeah, everyone, 100%. Hey, that's nice. Since everyone is responding with B, that's also the correct answer यहाँ पे. हम inheritance कर रहे हैं. See, I'm assuming आपको basics याद होंगे Python language के, but inheritance करने के लिए the standard format is मैंने क्लास A बनाया, मैंने उसके अंदर कुछ लिखा, मैंने एक क्लास B बनाया, and उसके अंदर जिस क्लास को मुझे इनहेरिट करना है मैंने ब्रैकेट्स में उस क्लास को पास कर दिया. तो क्लास B now inherits whatever is in class A. So yes, यहाँ पे इनहेरिटेंस लग रहा है. हम एक मेथड के ऊपर ओवरराइड कर रहे हैं एंड वी आर एसेंशियली सेइंग दैट कॉलिंग फीचर विल हैव 2 डिफरेंट मीनिंग्स. सो पॉलीमॉर्फिज्म है, इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म है. हम जनरल क्लास का कंसेप्ट यूज कर रहे हैं which in turn means encapsulation है. हमें क्लास ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, क्लास ऑब्जेक्ट के अंदर मेंबर्स हैं, वो एक बाइंडिंग कर रहा है and that is why there is encapsulation. So let's look at the technical meaning and technical definition of encapsulation एक बार. Encapsulation refers to binding members in a class. Binding members किस तरीके से, जिससे कि वो डायरेक्ट मैनिपुलेशन ना कर पाए. दूसरा हो सकता है यहाँ पे हम अगेन एक्सेस स्पेसिफायर्स की बात करें, जो हमने अभी एक्सेस स्पेसिफायर्स एब्स्ट्रैक्शन में देखे थे, द सेम अप्लाई है यहाँ पे. मैं बाइंड कर रहा हूं, मैं रोक रहा हूं एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर एंड आई एम ट्राइंग दैट दिस पर्टिकुलर बाइंडेड ऑब्जेक्ट डज नॉट गेट मैनिपुलेटेड बाहर से. सो अगर मैं क्लास की बात कर रहा हूं यहाँ पे, तो जो ये क्लास है ये इन टर्न एक क्लास ऑब्जेक्ट बनाएगा, एक क्लास ऑब्जेक्ट बनेगा फोन नाम से. उस फोन नाम की क्लास ऑब्जेक्ट के अंदर इनिट होगा, उस फोन नाम की क्लास के अंदर कॉलिंग फीचर होगा एंड ये एक तरीके का बाइंडिंग है. सिमिलरली स्मार्टफोन वाली क्लास के अंदर एक फंक्शन होगा कॉलिंग फीचर नाम से, विच इज ऑल्सो अ बाइंडेड वैल्यू. सो दिस इज बेसिक्स ऑफ लाइक एनकैप्सुलेशन किस तरीके से लैंग्वेज के अंदर काम करता है. आई होप दिस इज क्लियर. अगर कोई डाउट है तो अभी पूछ लीजिए, देन विल मूव ऑन टू इनहेरिटेंस. Anyone having doubt, please write on a chat box. If you have no doubt, kindly write clear or no doubt so that we can proceed. Anurag reply clear, Khushi reply clear, Deepak reply clear. Our students are saying, sir, this concept is clear. So we may proceed to the next topic. Perfect. So let's talk about inheritance. Inheritance के अंदर सबसे पहले एक बेसिक कंसेप्ट आता है सुपर कीवर्ड का. What's the answer इस केस के अंदर?
What do you think would be the answer? A 1 2 3, B strings 1 1 1, or simply 1 space 1 space 1? So what are the responses? Majority reply answer B. Okay. Uh, What's the minority? Already we have, I believe, a single student, Ayushman Singh, who said answer is C. Okay. So weirdly, not weirdly, Ayushman is correct in the answer. The answer would be 1 space 1 space 1. So let's see how that is the answer. Acha, one question that might arise in your mind is what is this STR thing? हमने तो आज तक कभी देखा नहीं है, ना हमने ये बनाया है, right? So what the STR is another like built-in function, built-in value, like init होता है हमारे पास, जो कि एक particular class की members को, if you want, can convert it into a string and return that particular string. अब हमसे पूछा क्या जा रहा है यहाँ पे? हमें बोला जा रहा है कि आपके पास 3 क्लासेस हैं. आपके पास एक क्लास है A, आपके पास एक क्लास है B, आपके पास एक क्लास है C, राइट? जो प्रॉपर्टीज हैं B की वो C के पास आ रहे हैं, जो प्रॉपर्टीज हैं A की वो B के पास आ रहे हैं. अब जब मैं इसको रन करने की कोशिश कर रहा हूं, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3, when I run this and I say कि print करो इन वैल्यूज को, what's happening is it's saying to the class, जो बेसिक फंक्शन है स्ट्रिंग वाला, आप उसको एग्जीक्यूट करो और मुझे बताओ कि वैल्यू क्या है. अब अगर मैं पाइथन के अंदर सिंपली ये लिखता हूं, टेल मी दिस थिंग, इफ आई राइट प्रिंट एबीसी, क्या ऑप्शन ए एबीसी प्रिंट होगा या ऑप्शन बी इस तरीके से एबीसी प्रिंट होगा? ए या बी? आंसर दो. Students are applying option B. एग्जैक्टली राइट, ऑप्शन बी प्रिंट होगा. सिमिलरली जब मैं यहां पे प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूं तो आंसर बी कैसे आएगा? इट वुड बी सी, राइट? अगर मैं टाइप चेक करूंगा, इफ आई से कि obj1 डॉट टाइप, तो हाँ देयर वुड बी स्ट्रिंग, लाइक इट विल से दैट क्लास स्ट्रिंग से बिलोंग करता है ये. बट व्हेन आई एम ट्राइंग टू प्रिंट इट, इट विल प्रिंट 1. इट वुड नेवर प्रिंट कोट्स के अंदर 1 unless I specifically say that कोट्स के अंदर 1 प्रिंट करो, राइट? अनदर थिंग यहाँ पे नोट करने वाला, which we might skip, but हम सुपर का यूज कर रहे हैं. सुपर क्या कर रहे हैं? सुपर इज बेसिकली टेलिंग द इनिट फंक्शन दैट जो भी इससे पहले वाली क्लास थी, आप उस पहली वाली क्लास पे जाओ एंड उस पहली वाली क्लास की इनिट फंक्शन को एग्जीक्यूट कर दो. अच्छा, सो लेट्स लुक एट सुपर फर्स्ट. सुपर क्या कर रहा है? आई रिपीट अगेन, whatever the upper वाला क्लासेस, मैंने ए को बी ने ए को इनहेरिट करा, तो बी कहेगा कि ए के पास जाओ एंड एग्जीक्यूट करके दो. अब हो सकता है मैं सुपर के थ्रू कंस्ट्रक्टर को कॉल करूं, हो सकता है सुपर के थ्रू मैं एक मेंबर को एक्सेस करने की कोशिश करूं. बोथ आर वैलिड चॉइसेस. इट इज अप टू मी कि मैं क्या एक्सेस करना चाहता हूं. इट इज अप टू मी कि मैं कंस्ट्रक्टर कॉल करना चाह रहा हूं या फिर मैं कंस्ट्रक्टर की जगह कोई मेंबर एक्सेस करना चाहता हूं. ओके, सो आंसर मी दिस. इस पर्टिकुलर केस के अंदर क्या आएगा? दिस इज डायरेक्ट इनहेरिटेंस. व्हाट वुड बी द आंसर?
सर रिस्पॉन्स क्या है अभी तक? A single response we are getting from Akshit Tyagi, that is C. Only single response. And one question we encounter. But first of all, we see of what output we are getting from the student. Till now, Okay. only a single student answer C. Okay. What about the others? What do you think the answer should be यहाँ पे? मतलब is it too difficult? It's a simple 10 line 12 line का code which is asking you आप एक बार ड्राई रन करें एंड आप मुझे बताएं कि आंसर क्या आने वाला. So since Aman, we're not getting another, yeah, Aman reply A. Dhruv reply A. okay, Ayushman reply A. Govind Jha reply A. okay, let's do one thing. Maybe time ज़्यादा लग रहा है solve करने के लिए. Let's start the timer again and give them another minute Fine, to solve. fine. So is everyone replying A, or is there any other answer? Now Anshika reply answer B, and rest of the people are replying A. A. A is the wrong answer. क्या कर रहे हो यार? You're from CSIT background. You should be able to do this. The correct answer is in this case is B. आंसर हमारा B आ रहा है. Okay, let's see B कैसे आ रहा है. Let's look at that and see. हमें बोला जा रहा है let's execute this part first. हमें बोला जा रहा है एक इंस्टेंस ऑब्जेक्ट बनाओ. हमने बना दिया. This belongs to parent class. इसके अंदर एक अंडरस्कोर अंडरस्कोर नाम है जिसकी वैल्यू 100 है. इस पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर हमें बोला जाता है नाम दो डाट, राइट, एंड इसको शो कॉल करो. जब मैंने शो कॉल करा, आई जस्ट राइट ऑल दी आउटपुट यहाँ पे. शो कॉल करो तो कुछ आउटपुट में आएगा पेरेंट कोलन 100. ओके, नेक्स्ट लाइन क्या कह रहा है? एक सन कॉल एक सन ऑब्जेक्ट बनाओ चाइल्ड क्लास का. चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए अंडरस्कोर अंडरस्कोर नाम बनाया. इस नाम को वैल्यू दिया 100. हमने एक वार बनाया, वार को वैल्यू दिया 10. एंड नाउ यू आर गेटिंग आस्क्ड व्हाट विल द वैल्यू व्हेन वी कॉल शो ऑफ द चाइल्ड क्लास. अब शो क्या कह रहा है? प्रिंट करना है हमें चाइल्ड सुपर एंड सम वैल्यू, बार की वैल्यू. ओके, अब मैं जब एग्जीक्यूशन करने की कोशिश करूंगा, एग्जीक्यूशन किस तरीके से होगा? यस, चाइल्ड प्रिंट करना है, बट मुझे यहाँ पे प्रिंट के अंदर एक फंक्शन एग्जीक्यूशन दिख रहा है, राइट? तो फंक्शन एग्जीक्यूशन पहले होगा. फंक्शन एग्जीक्यूशन क्या हुआ? पेरेंट कोलन 100 वापस आएगा. देन इस फंक्शन ने, इस शो ने कुछ रिटर्न करी वैल्यू, राइट? क्या रिटर्न करी वैल्यू? हेलो. स्मॉल एच, बट या रिटर्न करी वैल्यू. सो ये हट जाएगा और इसकी जगह द रिटर्न वैल्यू इज हेलो. अगर मैं प्रिंट करने की कोशिश करूंगा तो द वैल्यू वुड बी सी कोलन हेलो and then space 10, which is B, not any other value. Again, slightly tricky question था. I hope समझ आया होगा. नहीं समझ आया तो क्वेश्चन पूछो. And so you were saying कि कोई पहले वाले क्वेश्चन में एक डाउट है.
यस आई जस्ट स्टूडेंट का डाउट ये था कि एक्चुअली इतने सारे वो बीच पे वो आ गए हैं अपने मतलब हमारे पास ऑप्शंस आ गए थे ना, तो वो स्क्रॉल कर गया। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, अदरवाइज मैं खुद ही उस क्वेश्चन को फॉर्म कर लेता हूँ, मुझे याद है ओके, क्या उसने पूछा था। इस वाले क्वेश्चन के अंदर कोई डाउट है स्टूडेंट्स आपको? एनी डाउट? विधि मित्तल ने पूछा था, सर वी आर कॉलिंग सुपर अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, सो हम्म, सो हाउ इट गो टू अंडरस्कोर अंडरस्कोर एसटीआर अंडरस्कोर अंडरस्कोर। अच्छा, इन दैट वन हमने okay, हमने जब बोला कि सुपर का इनिट कॉल करो, क्या आपके पास ए क्लास के अंदर आपने इनिट फंक्शन लिखा है? हमने ए के अंदर इनिट फंक्शन नहीं लिखा, राइट? देयर इज नो इनिट फंक्शन इन क्लास ए, जिसका मतलब है दैट देयर वुड बी सम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो कि रन करेगा। सो एग्जीक्यूशन किस तरीके से हो रहा है? जब मैंने ओबीजे 1 बनाया, आई मेड ओबीजे 1, ओबीजे 1 ने बोला कि इनिट को कॉल करो क्लास ए के। चल, इनिट क्लास ए का कॉल हुआ, which is basically memory allocation करो and stop. Don't create any objects, don't do anything in the class. Similarly, जब मैंने ऑब्जेक्ट ए का बनाया, लाइक क्लास ए का ऑब्जेक्ट बनाया, सेम प्रोसेस हुआ। देयर वाज सम मेमोरी एलोकेशन बट नथिंग, इंस्टेंस के अंदर कुछ बना नहीं। ऑब्जेक्ट 3 के अंदर अगेन सेम काम हुआ, उसने ऑब्जेक्ट बी के कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, बी ने वापस ए के कंस्ट्रक्टर को कॉल किया एंड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर रन हुआ। There wasn't a constructor which we the programmers had written, right? अब क्वेश्चन आता है कि स्ट्रिंग कहां से आ गया, स्ट्रिंग कैसे रन हो गया? जब हम प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो str फंक्शन है, लाइक अगर आप डॉक्यूमेंटेशन देखोगे यू विल अंडरस्टैंड दिस, जो str फंक्शन है वो मेरी करंट इंस्टेंस को कन्वर्ट करने की कोशिश करता है स्ट्रिंग के अंदर। अगर मेरे पास str फंक्शन द अंडरस्कोर अंडरस्कोर str अंडरस्कोर अंडरस्कोर गिवन है तो मैं कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा, अदरवाइज आई से दैट मेरे पास कोई पर्टिकुलर तरीका नहीं है कन्वर्ट करने का एंड एरर है। सो दैट्स व्हाट हैपेंड हियर। जब मैंने बोला ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 ऑब्जेक्ट 3 आप प्रिंट करके दिखाओ, तो उसने चेक किया क्या इस पूरी हायरार्की के अंदर कहीं पे स्ट्रिंग वैल्यू है, कैन आई एक्चुअली राइट अ स्ट्रिंग, कैन आई फॉर्म अ स्ट्रिंग। अगर स्ट्रिंग बनाना पॉसिबल है तो हमने स्ट्रिंग बना दिया। एंड सिंस यहाँ पे हमारे पास ये पर्टिकुलर फंक्शन था, वी हैड दिस फंक्शन, इसलिए स्ट्रिंग बन गया, अदरवाइज स्ट्रिंग नहीं बनता, अदरवाइज देयर वुड हैव बीन एन एरर। अगर हम ये पूरी डेफिनेशन हटा देते एंड इसकी जगह सपोज सिंपली हम लिख देते पास दैट ए के अंदर कुछ भी नहीं है, देयर वुड हैव बीन एन एरर, राइट? सो आई होप इस वाले क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं था। सो In last question, they replied that kindly repeat. Andrew and Muskan having request, sir, kindly repeat the last one. this question, right? इस क्वेश्चन को रिपीट करना है या फिर Yes, sir. This one only. This one only. okay, yeah, so let's see the execution again. हमारे पास दो क्लासेस है, we have a parent, we have a child. पेरेंट क्लास क्या कह रहा है कि हमें एक नम वैल्यू बनाना है इन द इंस्टेंस एंड उस नम वैल्यू को असाइन कर देना है 100, दिस थिंग यहां पे। चाइल्ड क्लास क्या कह रहा है, पहले आप सुपर को कॉल करो, सुपर क्या कर रहे हैं, नम बना रहा है दिस थिंग, एंड उसके बाद वार बना रहा है। आई जस्ट यूज अनदर कलर, गिव मी अ सेकंड। या सो हम पहले नम बना रहे हैं दिस टाइम, एंड सन के अंदर हम नाम बना रहे हैं एंड वार बना रहे हैं, राइट? जब हमारे कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया तो वी हैव दैट एंड सन ऑन वैल्यूज, लाइक वी हैव दैट एंड सन ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल टू अस। अब जब हमने यहाँ पे बोला कि डैट डॉट शो करो, हुआ क्या, ये वाला फंक्शन रन करेगा, डैट डॉट शो रन करेगा। डैट डॉट शो के अंदर क्या लिखा गया है, पेरेंट कोलन वैल्यू प्रिंट करी जाए।
दैट इज पेरेंट दिस वैल्यू कोलन जो भी वैल्यू थी नम के अंदर, आप उस नम वाली वैल्यू को प्रिंट कर दो, विच इज 100. नाउ जब हमने बोला चाइल्ड रन करना, राइट? अच्छा, since I can't actually erase here, I'll just write the function again. Super show. Yeah. तो अब हमें बोला जा रहा है कि सन के अंदर शो कॉल करना है. जब मैंने बोला सन के अंदर शो कॉल करना है, तब क्या हुआ? एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हैं. एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया. सबसे पहले हमें देखा चाइल्ड, हमें वैल्यूज प्रिंट करनी है. अब चाइल्ड प्रिंट होगा, श्योर. एक फंक्शन दिख रहा है, तो फंक्शन पहले एग्जीक्यूट होगा, देन हम प्रिंट करेंगे. ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि हम पहले प्रिंट करना शुरू कर दें एंड देन विल स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग. तो हमने एग्जीक्यूट किया सुपर डॉट शो. सुपर डॉट शो ने वापस बोला कि p:100 प्रिंट कर दो एंड बोला कि रिटर्न कर दो हेलो को, रिटर्न हेलो, राइट? जब हम बात कर रहे थे यहां पे रिटर्न हुआ था, हेलो रिटर्न हुआ था, बट सिंस देयर वाज नथिंग टू कैच दैट वैल्यू, या उस वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए कोई स्टेटमेंट नहीं था, इसलिए वो हेलो प्रिंट नहीं हुआ. बट सिंस हम यहां पे बात कर रहे हैं इस वाली लाइन के अंदर, वी आर सेइंग चाइल्ड जो रिटर्न हुई है वैल्यू हेलो एंड वार को प्रिंट कराना, दैट इज चाइल्ड. यहां पे जो सी वैल्यू है ये हेलो, जो हमें रिटर्न वैल्यू था वो, एंड जो सेल्फ डॉट वार के अंदर वैल्यू था 10, ये तीनों चीजें प्रिंट करानी थी. तो इसीलिए हमारा आंसर है पेरेंट 100 सी हेलो 10, सॉरी चाइल्ड हेलो 10. आई होप एंड्रू आपका डाउट क्लियर हो गया होगा. इफ नॉट वी कैन टेक दिस अप एट द एंड ऑफ द क्लास अगेन. Andrew, Muskan, your doubt is clear or not? Still, if you have any doubt, we will entertain it at the end. Muskan said yes, it is clear. Andrew, do you have any doubt? If still it is there, so wait for a while. Just within a few minutes, we are moved to mic, and you can open your mic and you may ask the question. Okay. Okay. So ये कंसेप्ट है हमारा. सुपर किस तरीके से काम कर रहा है एंड जनरली एक्सेस किस तरीके से कर रहा है. नाउ कैन यू आंसर मी दिस? हमने एक सिंपल डायरेक्ट इनहेरिटेंस करा है, क्लास ए है क्लास बी है, एंड हमसे पूछा जा रहा है कि क्या एरर आएगा, एंड अगर एरर आएगा तो कौन सी लाइन पे एरर आएगा. So what's the response? Till now, we are not getting any response. I'm just waiting for that. Maybe Kalyani now reply A. Manish I'll start reply another B. timer. I'll give him another minute. Dhruv reply A. Astha reply A. और ईशा reply A. अरे sure. मुझे लग रहा है आंसर डी है, नो एरर. Vidhi reply D. Anmol reply D. Aman reply A. Okay, let's see the answer for this. The answer correctly is A. A क्यों है एंड एरर किस तरीके का आएगा? लेट्स सी दैट. अगर मैं बी क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूं तो इट्स सिंपली सम ऑब्जेक्ट स्मॉल बी के नाम से, जिसके अंदर कोई पर्टिकुलर इंस्टेंस वैल्यू नहीं है.
बट जब मैंने बी बनाने की कोशिश करी तो मुझे बोला जा रहा है कि सुपर का फन एंड फन वन एंड फन टू कॉल करा जाए, विच मीन्स कि ये वाली वैल्यू प्रिंट होगी जो भी इस प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर लिखा है, एंड जो भी इस प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर लिखा है वो प्रिंट होगा, विच इज एब्सोल्युटली फाइन. जब ये लाइन 14 का एग्जीक्यूशन हो गया. अब जब मैं लाइन 15 के एग्जीक्यूशन की बात कर रहा हूँ, लाइन 15 के एग्जीक्यूशन के अंदर बी डॉट फन वन कॉल करा जा रहा है विच इज दिस, एंड हमसे पूछा जा रहा है कि लाइक प्रिंट करो. सो whatever this particular string is, this particular string will be printed. Easy enough. अब जब हम आते हैं लाइन 16 पे, एक क्वेश्चन अराइज होता है. क्वेश्चन क्या अराइज होता है? फर्स्ट, क्या मेरे पास एक्सेस अवेलेबल है फन टू का? यस या नो? हाँ अवेलेबल है, राइट, ए थम्स अप व्हाटएवर, या फिर नहीं है तो बी, और व्हाटएवर एल्स यू वांट टू इंडिकेट दैट. मधुलिका रिप्लाई बी, मुस्कान रिप्लाई नो. हमारे पास एक्सेस नहीं है फन टू का, एंड दैट इज द एरर, राइट? Only two Okay. students reply, Madhulika and Muskan, and they have the common option B. Adi is confused. Okay, anyways, the answer is yes, access available है. We are doing inheritance. हम जब inheritance कर रहे हैं तो जो फंक्शन 1 है वो तो ओवरराइट हो गया. फंक्शन 1 का डेफिनेशन कंप्लीटली गॉट ओवररिटन. देयर इज अ न्यू फंक्शन 1 नाउ. बी के अगर मैं एक्सेस करने की कोशिश करूंगा तो, बट मेरे पास, रिमेंबर द रूल यार, रिमेंबर द आईसीपीओ रूल. सॉरी, क्या इंस्टेंस के अंदर वैल्यू है? क्या इंस्टेंस के पास पर्टिकुलर नेम एग्जिस्ट करता है? नहीं करता. क्या पेरेंट के पास करता है? सॉरी, क्लास के पास करता है? क्लास के पास पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है. क्लास के पास फंक्शन 2 अवेलेबल नहीं है, बट फंक्शन जो हमारा है वो हमारे पेरेंट के पास अवेलेबल है, बिकॉज वी इनहेरिटेड फ्रॉम क्लास बी, फ्रॉम क्लास ए. हमने क्लास बी के अंदर क्लास ए से इनहेरिट करा, तो फंक्शन 2 हमारे पास थ्रू द पेरेंट एक्सेस अवेलेबल है. सो एक्सेस है. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, एरर क्या है? आप यहां पे ध्यान दोगे, अगर हमने देखा है लाइन नंबर 4 के अंदर देयर इज अ पैरामीटर, राइट? हमने यहां पे पैरामीटर नहीं दिया, एंड बिकॉज हमने पैरामीटर नहीं दिया, दैट इज व्हाई देयर इज एन एरर. द एरर इज एसेंशियली द पैरामीटर इज मिसिंग. नॉट एक्सेस नहीं है, बट पैरामीटर नहीं है. अगर मैं यहां पे लिखता सपोज 1 फंक्शन बी डॉट फंक्शन 2 ब्रैकेट्स के अंदर 1, इट वुड हैव वर्कड. कोई एरर नहीं आता, राइट? इज इट क्लियर ये किस तरीके से काम कर रहा है? एंड व्हाई द आंसर इज ए. Even we are getting good responses from Manish and Kalyani. When you started explanation, they give this. They also write the same thing. Access है, but argument pass होना चाहिए. Kalyani is also writing the same thing. We have, but it require argument. So these two students are giving a positive response with explanation. Dhruv or Arisha reply yes, it is clear to them. Yes, it is clear. Okay. Since it's clear, let's just see. So do we have the time to start a new topic? I believe we stop here and we take an open mic and doubts with the students, because we finished two major concepts. So it's better that we take a doubt by opening the mic. Madhulika having one question. Line 15 क्यों सही है sir? Line 15 क्यों सही है? Okay. So line 15 में हम क्या कह रहे हैं? देखिए, हमारे पास we have a B का instance which has like the built-in values but nothing else. हमारे पास जो रूल है, like हम जब एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं किसी भी चीज को, तो there is a very simple rule, ICPO.
क्या मेरे पास इंस्टेंस के अंदर कोई नाम एग्जिस्ट करता है fun1 से? नहीं करता ना, तो इंस्टेंस में नहीं है। क्या मेरी क्लास, जिस क्लास का मैं ऑब्जेक्ट हूं, क्या उस पर्टिकुलर क्लास के अंदर ये ऑब्जेक्ट वैल्यू एग्जिस्ट करती है? एक्चुअली हाँ, करती है। fun1 इज पार्ट ऑफ क्लास बी, एंड जो स्मॉल बी है वो बना किससे है? स्मॉल बी बना है इज एन इंस्टेंस ऑफ कैपिटल बी। तो हम ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट करेंगे। जो ये हमारा वैल्यू था, सॉरी दिस फंक्शन लाइन 2 एंड लाइन 3 पे जो हमने ये फंक्शन लिखा था, ये फंक्शन हमारी इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, ये कंप्लीटली ओवरराइट हो चुका है। हम यही कंसेप्ट पॉलीमॉर्फिज्म में देखेंगे किस तरीके से काम कर रहा है एंड किस तरीके से ओवरराइट हो रहा है, एंड ओवरराइट करने के लिए रूल्स क्या क्या है। आई होप मधुलिका योर डाउट इज क्लियर। सो बिकॉज हमारे पास क्लास में एक्सेस था इसलिए क्लास में हो गया। सिमिलरली लाइन 16 पे क्लास में नहीं था बट क्लास के पेरेंट में था, इसलिए हमारे पास एक्सेस है एंड वी कैन रन द फंक्शन इफ वी आर गिवन द राइट पैरामीटर।